Everyone, कैसे हैं आप सब? Today we are going to start our new exercise of integration, that is exercise 7.4. And in exercise 7.4 there are some particular formulas. Okay, तो ये पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस हैं बेटा जिनका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं. अगर आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है स्पेशली इन पॉलिनोमियल्स तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन दिस फॉर्मूलाज एंड यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर. ओके, तो फर्स्ट आई कैन टेल यू what are these formulas, ठीक है, and how we can convert the functions into these particular formulas and find out our answer. तो start करते हैं. The formula number 1 is integration of x square minus a square dx, where a is constant, x is variable. Okay, so that is 1 by 2a log x minus a x plus a plus c. And second one is 1 upon x square plus a square, that is 1 by a tan inverse x by a plus c. And the third one is 1 upon a square minus x square, that is equals to 1 upon 2a log a plus x, a minus x plus c. Okay, so these are the first three formulas. The fourth one is similar as to this, but we can take under root on it. So this is the first one. This is under root x square minus a square, that is equals to log x plus under root x square minus a square plus c. And the fifth one is integration of 1 upon under root a square minus x square, that is equals to sine inverse x by a plus c. And the sixth one is 1 upon under root x square plus a square, that is equals to log x plus under root x square plus a square plus c. Okay, and the seventh one is, if you are going to solve this type of problems like ax square plus bx plus c. Okay, so it is an polynomial equation. First you can convert it into either of these six forms, any of these six form. जो भी आपका बन रहा है आप उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करिए. अब उसको आप कन्वर्ट करेंगे क्या, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बेटा कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड जो आपने क्लास 10th में सीखा था, है ना. किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो पहले मैं आपको ये बताया था कि हम करेंगे कैसे. तो यू हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. Okay, so first you can take out a as common, so that means this is ax plus b by ax plus c by a. Okay, and then you can add or subtract b by 2a whole square in these equations. 2a whole square plus c by a. So these three terms will convert it into the form a into, this is x square x plus b by a, b by 2a whole square minus, this is b square by 2a plus c. Okay, if you can multiply a, so this is the constant part here and this is the variable part here. Okay, I hope all you can understand how we can convert these forms. Okay, तो जब भी आपका कुछ ये आए तो आपको पहले कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड में उसको कंप्लीट करना है. कंप्लीट हो जाने के बाद बेटा वो आपकी इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपको उसका फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 8, formula number 8, that is dx divided by under root ax square plus bx plus c. Okay, तो आपको जब भी इस तरीके का मिलेगा तो अगेन यू कैन पुट कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड हियर and convert it into any 6 above particular functions. ओके, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल
सॉरी फॉर्मूला नंबर 7 में क्या था, वैसे आपको फॉर्मूला नंबर 8 पे भी करना है, बस अंडर रूट का फर्क है, तो उसमें आपके फर्स्ट 3 लगेंगे और इसमें आपके 4, 5 और 6 में से कन्वर्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव अ फॉर्मूला लाइक पी एक्स प्लस क्यू dx divided by ax square plus bx plus c, okay, so here you can put first px plus q is equals to a into d by dx of derivative of the denominator plus b, and this is equals to like this is 2ax plus b plus b, capital B। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स को कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की आप वैल्यू फाइंड करेंगे। और सिमिलरली अगर आपका फंक्शन ये भी है तो भी आपको सेम ही काम करना है, मीन्स अंडर रूट के अंदर आ जाए अगर आपका, तो भी आपको सेम ही प्रोसेस करना है, ठीक है। आप ए और बी के वैल्यू निकाल के इनको सेपरेट करेंगे, देन यू कैन अगेन फाइंड अ डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। तो देखेंगे जब आपको दोबारा से मिलेगा तो आपको दोबारा से किस तरीके से मिलेगा बेटा, देखिए जब ये पी एक्स और ये है आपका, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये दिस लाइक दिस पी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 2ax प्लस बी divided by ax square plus bx plus c plus b divided by again ax square plus bx plus c, okay। Now you can integrate all these three, okay, so if you can integrate all these three, so you will get here always a log t, and you can consider this as t, okay। And in this section is always converted into 7 और 8 फॉर्मूला, तो आपका जो अबव 7 और 8 मैंने आपको बताया था उन्हीं फॉर्मूलाज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे आपने इनको सॉल्व किया था, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट, ये थ्योरी पार्ट आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा बेटा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज। तो आई कैन चूज सम पर्टिकुलर questions of your exercise 7.4 because there are 23 or 24 questions, so I can take 10 questions on each formula. So first question is integration of 3x square divided by x raised to the power 6 plus 1 dx. So you can look at here by using substitution of integration by substitution, let me consider x cube is equals to t. If we can take x cube is equals to t, then 3x square dx is equals to dt. That means this is dt upon t square plus 1, or it is the formula of like this, by using this formula 1 upon x square plus a square dx is equals to 10 inverse x by a plus c divided by 1 by a, ओके। तो हमारे को ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मेशन मिल रहा है आपको सेम, दिस इज t इज द वेरिएबल एंड 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है बेटा, 1 ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन 1 10 इनवर्स x की जगह आ जाएगा आपका t डिवाइड बाय 1 प्लस c, ओके। तो यू विल गेट द फाइनल आंसर इज 10 इनवर्स x क्यूब प्लस c। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन, ओके। So I hope you can understand how we can convert. So first you can convert your function into the particular functions, okay, then you can solve the answer. So now come to the next question. The next question is like 1 upon under root 1 plus 4x square dx, okay। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे 2x का होल स्क्वायर आपका डायरेक्ट बन रहा है, बट नो, आप पर्टिकुलर फंक्शंस में हमेशा जब भी देखेंगे तो जो आपका वेरिएबल टर्म होता है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा 1। तो फर्स्ट यू कैन मेक और कन्वर्ट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म एज 1। तो वी कैन टेक 4s कॉमन हियर, तो इफ वी कैन टेक 4s कॉमन तो इट इज कैन बी रिटन एज 4 into 1 by 4 plus x square, right। तो under root 4 is 2, तो 1 by 2 we can take as common, and this is written as under root 1 by 2 whole square plus x square।
or you can say that by using this formula of dx upon under root a square plus x square is log a x square plus a square, right, plus c. So you can find out the final answer is 1 by 2 log x plus under root x square plus 1 by 2 whole square plus your, you can solve it further, so you can write it as log 2x plus under root 4x square plus 1 divided by 2 plus c, or you can write it as log 2x plus under root 4x square plus 1 minus log 2, okay, plus c. So now look at here, this and this is a constant, so we can convert it as 1 by 2 log 2x plus under root 4x square plus 1 plus c dash, where c dash is equals to c plus c minus 1 by 2 log 2, okay, because देखिए this is the constant and this one is also a constant, the constant minus constant is again a constant, so we can take it as a single constant, okay. तो आप हमेशा कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ जितने भी आपके कांस्टेंट टर्म्स आ रही है आपके फाइनल आंसर में, आप उसको कंसीडर करके सबको ज्वाइन करके एक सिंगल कांस्टेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हाफ मार्क होता है बेटा, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है सभी ने। एक क्वेश्चन अब देखिए नेक्स्ट। तो अभी तक हमारे दो फॉर्मूलाज चेक कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारे को अपने फॉर्मूलाज को कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर बुक, that is 1 minus x की power 6 dx, okay. So here again you can take x3 is equals to t, that means 3x square dx is equals to dt, or x square dx is equals to dt by 3, that means it can be converted as dt, 1 by 3 is taken out and this is 1 minus t square, fine. So this is a square minus x square time. So what is the formula of under root a square minus x square dx is equals to 1 by 2a log a plus x, a minus x plus c, right. So you can write it as 1 by 3 log 1 by 2a, so 2a is 1, so this is 1 by 2 log a is 1 minus t divided by 1 plus t, sorry, this is 1 plus 1 minus plus c, that is equals to 1 by 6 log 1 plus x cube 1 minus x cube plus c, okay. So I hope all you can understand how I can convert the given function to the particular function and then apply the formulas, okay. So this is the important one. So now come to the next question, देखेंगे बेटा ध्यान से। The next question is question number 10. This is, now we will get here, look, so this is a 8th particular function जो मैंने आपको 8th फॉर्मूला बताया था उसके जैसा है, देखिए कैसा है, dx डिवाइड बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो फर्स्ट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू बाय यूजिंग कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड। तो पहले हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर करेंगे, तो बेटा ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। तो देखिए इसका हाफ करिए आप, ओके, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 1, तो 1 आप ऐड कर दीजिए, ओके, 1 का स्क्वायर आप ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज प्लस 1, ओके। तो दिस कैन बी रिटन एज dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा। तो देखिए यहाँ पे ये अभी आपका पर्टिकुलर फंक्शन बन गया, तो लेट कर लीजिए, लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, दैट मीन्स dx इज इक्वल्स टू dt, दैट मीन्स दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज dx dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो दिस इज अंडर रूट, तो दिस इज इक्वल्स टू log t plus under root t square plus 1 plus c, and you what is the value of this is x plus 1 and this is under root
x plus 1 whole square plus 1 and this will be always equals to the this one. तो आप इसी को लिखेंगे अपने फाइनल आंसर में. This is x plus 1 plus under root x square plus 2x plus 2 plus c. मीन्स ये देखिए आपका ये इसी के इक्वल तो था, ये तो हमने निकाला था ना बेटा. तो हमेशा आप अपने पर्टिकुलर फाइनल आंसर में उसी वैल्यू को पुट कीजिएगा जो आपको डिनोमिनेटर में दी है या जिस फंक्शन को आपने कन्वर्ट किया था. ठीक है, तो समझ आ रहा होगा सभी को बेटा किस तरीके से हमें कन्वर्जन करना है. कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड भी समझ में आया होगा जहाँ तक है. तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं आपको कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर का ही सेम. दिस इज अंडर रूट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो देखिए फिर से हम कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड हम यूज करेंगे इसका. तो देखेंगे 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर. फाइन. तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 1 है कोफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए इसको. आप क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे. दिस इज 3/2. तो दिस इज 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इज 9 आप सीधा लिख लीजिए 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर. तो देखिए अगर आप इन तीनों का यूज करते हैं, ठीक है, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर एंड दिस इज 8 एंड दिस वन इज 9/4. तो 8 एंड 9/4 का ऐड करेंगे, 8 4 30, दिस इज 32 प्लस 9 41. तो दिस इज 41/4 माइनस x प्लस 3 x माइनस 3/2 होल स्क्वायर. x माइनस 3/2 होल स्क्वायर. राइट. तो देखिए हमने इसको फिर कन्वर्ट कर लिया है हमारा, और इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट 41 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो आपको बस कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर से ना फॉर्म कन्वर्ट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बेटा, पर आप इसके क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना इजी होता जाएगा. तो आपको इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग ज़्यादा करनी है ताकि आप कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर जो आपने 10th क्लास में किया था उसको अगर आप भूल गए हैं तो आप फिर से रिकॉल कर पाएंगे. ठीक है, तो देखिए इसको हम पर्टिकुलरली कैसे लिख सकते हैं बेटा, dx डिवाइड बाय अंडर रूट 41/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर. तो जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दिस इज साइन इनवर्स x बाय a. तो x क्या है आपका यहाँ पे, x माइनस 3/2 एंड a इज अंडर रूट 41/2 प्लस c. तो यू कैन टेक LCM हेयर. तो दिस इज 2x माइनस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 41 प्लस. ओके, और यू कैन टेक दिस इज एज कॉमन और लेट कर लीजिए t, तो आपका सेम ही आंसर आएगा. तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार सब्स्टिट्यूशन यूज करना है. ठीक है, अपना आप टाइम बचाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर बार सब्स्टिट्यूशन करें. इट इज अंडरस्टूड कि आपने क्या किया है वहाँ पे. ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड दैट क्वेश्चन इज अगेन गुड क्वेश्चन. दिस इज अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx. तो देखिए अगर आपका टफेस्ट क्वेश्चन आएगा ना तो बेटा वो ऐसे ही आएगा. इसके अंदर हम सब कुछ ट्राई कर लेंगे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. ओके, तो यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस. ठीक है, आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिएगा, बट ये क्वेश्चन में आप सारे फॉर्मूला और सारे पर्टिकुलर जो भी हमने मेथड सीखे ना बेटा सारे यूज कर लेंगे हम एक बारी में. तो पहले हमें क्या करना है बेटा, इट इज द फॉर्म ऑफ px प्लस q डिवाइड बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx. राइट. तो हमें क्या पता था कि बेटा हमें 4x प्लस 1 को किसके इक्वल रखना था, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 के प्लस b. तो दिस इज 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1. देखेंगे आप 4x प्लस 1 है आपका इंटू a प्लस b. तो यू कैन राइट इट एज 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4ax प्लस a प्लस b. That means on comparing both sides, the coefficient of x must be equals to coefficient of x. That means 4a is equals to 4 and the constant term a plus b must be equals to the constant term that is equals to 1. So a is equals to 1 here. That means a plus b is equals to 1. That is b is equals to 0. Okay, if b is equals to 0, तो देखिए तो आपका बहुत ही easily हो गया बेटा.
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज। अब देखिए आपको क्या करना है बेटा, जो आपको एक क्वेश्चन दी गई थी दिस फंक्शन, इसके अंदर आपको ए की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और ऊपर लिखनी है। तो दिस इज ए क्या था आपका 1 × 4x+1 ही रहेगा आपका, प्लस 0 डिवाइड बाई √2x² प्लस x -3 dx। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ये है और ये है, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो आप सीधा से लेट कर लीजिए फिर से 2x² प्लस x -3 इज इक्वल्स टू t, तो दैट मीन्स 4x+1 dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx आ गया बेटा आपका, सॉरी, तो दैट मीन्स दिस इज dt डिवाइड बाई √t। और √t की वैल्यू क्या होती है बेटा, बताइए। √t को आप क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1/2 इंटीग्रेट करेंगे, तो दिस इज t की पावर -1/2 प्लस 1, t की पावर सॉरी -1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √t, ठीक है, और 2 ऊपर आ जाएगा प्लस c, तो दिस इज 2 √2x² प्लस x -3 प्लस c, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा लास्ट, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं कर पाए। लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे बेटा जल्दी से। दैट इज क्वेश्चन इज 5x - 2 डिवाइडेड बाय, दिस क्वेश्चन नंबर 18, एंड दैट इज 1 + 2x + 3x² dx, ठीक है। तो देखेंगे बेटा जी, ये आपको दिया है, ठीक है। आपने 5x - 2 इज इक्वल्स टू लिया d/dx a इंटू दिस इज 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस b, दैट मीन्स 5x - 2 मस्ट बी इक्वल्स टू a इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 6x प्लस 2 बेटा। अब देखिए 5x - 2 दिस इज 6a प्लस 6ax प्लस 2a प्लस b, that means on comparing both sides 6a must be equals to 5 and 2a plus b is equals to -2. That means a is equals to 5/6, and if a is 5/6 that means 5/3 plus b is equals to -2 and b is equals to -2 minus 5/3, this is -11/3। ओके, तो जैसे कि मैंने बेटा आपको बताया था कि आपको इसी के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है अपनी, तो यू कैन रिटर्न राइट इट एज 5/6 कॉमन ले लीजिए आप, और ऊपर लिखेंगे आप ये 6x + 2, देन इसके नीचे सेम वैल्यू 1 + 2x + 3x² प्लस dx प्लस, अब b की वैल्यू लीजिए, b क्या था बेटा आपका, दिस इज -11/3 एंड dx डिवाइड बाय 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे तो लगेगा आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसका डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए t इज इक्वल्स टू 1 + 2x + 3x², दैट मीन्स 6x + 2 dx इज इक्वल्स टू dt। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 5/6 ऑफ dt/t। ओके, और यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, वही सेम प्रोसेस कि इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए पहले। तो यहाँ पे आप अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज -11/9 dx, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, पहले मैं इसमें यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूँ कि जैसे हमने वो इसका मिडिल वो करा है। तो यहाँ पे हम देखिए 3 कॉमन निकाल लेंगे, दिस इज x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, 2/3 का आप हाफ करेंगे, ठीक है। हमेशा जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करना होता है, तो क्या मिलेगा बेटा आपको 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, आपको इसी के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो इसी के अंदर आप ऐड करिएगा, तो देखिए 3x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3। ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का आप करेंगे, दिस इज 3 - 2 दिस इज 2, तो दिस इज प्लस 2 डिवाइड बाय 9। ओके, तो देखेंगे आप, तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है बेटा किसका, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ना यू कैन पुट द वैल्यूज हियर। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनल आंसर ये तो हो जाएगा आपका 5/6 dt/t माइनस 11/9 एंड dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस √2/3 होल स्क्वायर। ओके, तो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए दिस इज 5/6 log t
minus 11 by 9, and this is the formula of a square plus x square. A square plus x square का formula क्या होता है बेटा? 1 by a tan inverse x by a. तो this is 1 by a. a क्या है बेटा आपका? 2 by root 3. ओके, एंड x by a, तो tan inverse x क्या है बेटा? x plus 1 by 3 है आपका, और a क्या है? अंडर रूट 2 by 3 प्लस c. तो बस आपको इसको सॉल्व करना है. अब t की वैल्यू क्या ली थी आपने? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 11 by 3 रूट 2, एंड दिस इज tan इनवर्स. यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय रूट 2 प्लस. ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर. तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन दिस पर्टिकुलर टाइप. ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइप का यूज़ करके हमारे को हमेशा क्या मिलता है? एक log t वाला फॉर्म मिलेगा फर्स्ट में, और सेकंड में आपका वही 6 पर्टिकुलर फॉर्मूलाज में से एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा. बट इसका कन्वर्जन करने के लिए आपको इस मेथड का याद रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे. तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस दैट आई एम सॉल्विंग हियर. तो प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, solve other questions of exercise, rest questions, and please like, share and subscribe my channel.